आप सभी ने देख लीजिएगा। At UN, UAE Mars probes launch rescheduled. Human trials for co-vaccine begin. Disaster management weak earthen embankments cause some sorrow. Draft EIA gives license for violations. What is EIA? तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक मैंने पहले भी आपको बताया था यूएई का मार्स प्रोब्स मिशन लॉन्च रीशेड्यूल। तो एक बार फिर से इसे तोड़ दो। पिछली बार भी एक वीडियो दिखाई थी मैंने इससे रिलेटेड, और आज फिर दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए, प्लस ये भी पता चल जाए कि बेसिकली यूएई का मार्स प्रोब मिशन है क्या। Mars is a mysterious planet that's always fascinated people on Earth. We still have plenty of unanswered questions. For instance, we know there is water on Mars, but only in the form of ice and vapor. Water can't exist on Mars as liquid because the atmosphere has become too thin. Oxygen and hydrogen, the building blocks of water, are being lost into space. We also know that Mars has some exotic weather, like massive dust storms, similar to those on Earth, which are more brief and localized. On Mars, the dust storms can engulf the entire planet and rage on for months. Our science mission is to produce the first ever truly global picture of the Martian atmosphere. This is the first holistic study of the Martian climate and how the layers of the atmosphere fit together. We will model the connections between all the different components of the Martian climate, including all the temperatures, winds, dust, and clouds. Scientists on Earth will use the data that will be sent by the probe to build a complete dynamic picture of the Martian climate. This is something that has never been seen before. Our data will give the international science community a deeper and richer understanding of the Martian atmosphere. First, this will help us to model Earth's atmosphere and how it will evolve with time over millions of years. Second, it will allow us to analyze newly discovered planets far across the galaxy to be able to determine if there is life on it. We will share the data freely with more than 200 universities and research institutes around the world. This is our contribution to human knowledge. We want the orbiter to arrive at Mars in 2021, the UAE's 50th anniversary. Earth and Mars align their orbits once every 2 years. So we have a very short launch window in July 2020. We have to be ready by then. There will be no second chance. It's a race against time. The spacecraft will be launched in the nose cone of a rocket. The rocket must exceed 40,000 kilometers per hour to break out of Earth's gravity. So यूएई का जो ये मार्स मिशन है, बेसिकली हम इसे इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यूएई की आइडियोलॉजी हम किस तरीके की जानते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी मानी जाती है यूएई की, कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम आइडियोलॉजी में क्या होता है कि कुरान पे ज्यादा फोकस करा जाता है और क्या कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कम विश्वास करा जाता है। तो ये एक तरीके से ना ही केवल यूएई का मार्स मिशन है, बट ये एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का व्यू पॉइंट पूरी तरह वर्ल्ड में चेंज कर देगा कि मुस्लिम नेशंस आर नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस नेशन के तौर पे हैं, बट हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड कर रहे हैं कि हम एक मार्स मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये मार्स मिशन बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी को वर्ल्ड के सामने दर्शाएगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम खाली एक रिलीजियस नेशन नहीं है। ओके, बिकॉज क्या होता था कि रिलीजियस नेशन को ये माना जाता है कि वो बैकवर्ड सोच वाले होते हैं, और तो ये सब चीजें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने यहाँ से खत्म करना चाह रहा है और बेसिकली ये चाह रहा है कि
आगे आने वाले टाइम में हमारी जो डेवलपमेंट हो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो, हमारा रिलीजियस व्यू पॉइंट वर्ल्ड के सामने ना जाए, वी शुड बी कंसिडर्ड लिबरल्स, ओके। The Senate boosters and rocket stages will fire up and fall away in turn. It will fire its thrusters and accelerate to 100,000 kilometers per hour. Then the spacecraft will separate from the launcher. It will unfold the solar panels and point the spacecraft toward the sun to charge the batteries. The journey across the solar system will take around 7 months. As it travels, the spacecraft needs to figure out its location. There is no GPS in deep space. So the spacecraft will use star trackers to navigate using patterns of constellations. This is similar to the way our ancestors used the stars to find their way in the desert and at sea. When the spacecraft gets close to Mars, it'll have to use its thrusters as brakes. It'll need to slow down to 14,000 kilometers per hour to enter orbit. This will be a tense time at mission control in the UAE. The thrusters must fire for 30 minutes at precisely the right time. If anything goes wrong, the spacecraft will pass Mars and the mission will fail. But we can't control the spacecraft in real time from Earth. When it's so far away, signals can take more than 14 minutes to arrive. Its brain will be sophisticated enough to make its own decisions. Look back in history. The Middle East was once a powerhouse for innovation and science. Muslim civilizations were once pioneers in mathematics and astronomy. This will be the first ever Arab-Islamic mission to another planet. The Emirates Mars mission will have a major impact and a legacy here in the UAE. That's because of the approach that we took to planning and building this mission. The easy way to do it would have been to go and buy technologies and expertise from big space agencies and companies. We decided to do it ourselves, to build it ourselves, and to learn with our partners along the way. This mission is managed by a 100% Emirati team. Emirati universities and research institutions will work on the science. That way we get to build the knowledge and keep the skills. This mission will be the catalyst for a new generation of Arab scientists and engineers. It will be an anchor project for the space and science sector here in the UAE. That's one reason I'm so proud and excited to be part of the mission as an Emirati and as an Arab. It's very symbolic for an Arab and Muslim country to launch an interplanetary mission. We have taken a step beyond just looking at the skies. We are going there. I think it will change the way young people look at their region. It will help us think positively and see hope and opportunity. If a small young Arab nation is able to reach Mars, truly anything is possible. This is your Mars mission of United Arab Emirates. That's the complete summary of it. Now we move on to this. अब हम बात करते हैं current affairs of the day. At United Nations meet, Modi calls for reformed multilateralism. Modi calls for multilateralism. तो मैंने जैसे बताया यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम किस तरीके से जो वर्ल्ड को लीड करना है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज अवॉइडिंग चाइना and India is also avoiding China. So that's the reform multilateralism. तो यहाँ पे reform की बात करी है नरेंद्र मोदी ने, तो इसके बारे में हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे, रीड करेंगे. और हेल्थ, ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बिगिंस. तो आप सभी को पता है कि कोवैक्सीन के जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो बिगिन हुए हैं रोहतक में, ठीक है, रोहतक सिटी ऑफ हरियाणा में. तो यहाँ पे 3 जनों ने अपने आप को एज अ ट्रायल के तौर पे, मतलब अपने ऊपर ट्रायल करवाने के तौर पे वॉलंटियर किया है अपने आप को, ठीक है. तो नेक्स्ट इज पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट. वीक अर्दन एम्बैंकमेंट्स कॉज असम सॉरो. एम्बैंकमेंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार.
So these are known as embankments. मतलब अगर आपको जैसे कि मैंने आप सभी को पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि जो भी रिवर होती है उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, मतलब वो एक एरिया एरिया को ऑक्यूपाई करती है। अगर हमें उस एरिया को बेसिकली रोकना है, मतलब उस एरिया में वो ज्यादा ना बढ़े, मतलब क्या कहते हैं वो ज्यादा ना फैले, तो बेसिकली आपको वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल खड़ा कर दें वॉल को। हॉरिजॉन्टली अगर वॉल को खड़ा कर देंगे तो एक लेवल बढ़ेगा पानी का, दूसरा लेवल बढ़ेगा, तीसरा लेवल बढ़ेगा, चौथा लेवल बढ़ेगा, पांचवें लेवल तक आते आते वो रुक जाएगा पानी। ठीक है, पांचवें लेवल तक आते आते वो रुक जाएगा पानी। तो वो साइड में जो आपके रिहायशी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल सिटी एरिया है, वो वहां पे नहीं जाएगा, रिवर के एम्बैंकमेंट्स में रह जाएगा। बट क्या हुआ कि असम में बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, क्या हुआ कि वहां पे सिल्ट जमा हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वहां पे सिल्ट जमा हुआ है, क्या कहते हैं जितनी भी नदियां हैं उनमें सिल्ट हो रखा है, और एम्बैंकमेंट्स वहां पे 50-60 साल पुराने बने हुए हैं, जो अंग्रेज बना के चले गए, बस वही है। मतलब एक तरीके से कि गांधी जी का कुछ वर्ड्स थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज हम पे रूल करेंगे। ठीक है, तो गोरे अंग्रेज तो चले गए, बट ये काले अंग्रेज जो है ना, सभासद पार्षद जितने भी हैं, तो ये एक तरीके से हमें लूट ही रहे हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली हमें गुलाम बना रहे हैं एक तरीके से। अगर ये करप्शन करते रहेंगे ना, बेसिकली आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो भी पॉलिसी आती है वो सब पॉलिसीज कंपनीज के अकॉर्डिंग होती है। तो इन बिचौलियों का, अनपढ़ बिचौलियों को हमने रख ही क्यों रखा है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन अनपढ़ जाहिल बिचौलियों को जो चौथी फेल है, मतलब हम सभी इतनी इतने इतने लेवल की पढ़ाई करके आते हैं। ठीक है, ये जाहिल बिचौलिए किसी का मर्डर करके, किसी का कत्ल करके, अपनी एरिया में दाग जमाने का मतलब समझते हो आप? कि क्या कहते हैं, अपने आप का स्टेटस बढ़ा के, अपने आप को क्या कहते हैं मर्डर और रॉबरी में इन्वॉल्व करके, अपने आप को इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व करके पैसा कमा लिया। ठीक है, पैसे के दम पे इन्होंने क्या करा, अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बना लिया। ठीक है, तो इन चौथी फेल लोगों को बेसिकली आज के टाइम आगे आने वाले टाइम पे इन्हें तो बीच में से निकाल ही दो। मतलब हम सब क्या कहते हैं, बिचौलियों का काम अब भारत में आगे चल के नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़े बिचौलिए हैं ये पॉलिटिशियंस। अगर इंडस्ट्रीज को, फॉर एग्जांपल जियो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन लेके आना था, तो व्हाई वी नीड नरेंद्र मोदी फॉर स्पीकिंग फॉर दैट कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लेके आई है गवर्नमेंट। ओके, आत्मनिर्भर भारत के लिए जियो वो लेके आया, जियो मार्ट लेके आया। तो आत्मनिर्भर भारत का क्या कहते हैं क्रेडिट किसके तरफ चले जाएगा? गवर्नमेंट की तरफ। तो व्हाई डू वी नीड दीज इंटर क्या कहते हैं बिचौलियों का काम हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर लेगी, इंडस्ट्रीज अपना काम कर लेंगी, तो इन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये सब बिचौलिएपन का काम करते हैं और बिचौलिएपन का ये पैसा खाते हैं। That's it. They have nothing to do with policies. They don't know they don't know anything. जितनी भी आप वर्ड सुनते हैं ना किसी भी पॉलिटिशियंस के, वो एक्चुअली में उनके वर्ड होते ही नहीं है। सारे के सारे वर्ड वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या उनके पर्सनल असिस्टेंट जितने भी होते हैं, वो सब वो ही लिख के देते हैं। ठीक है, तो इन बिचौलियों की वर्ड्स को हम बेसिकली सुने ही क्यों? तो आगे आने वाले टाइम पे हमें ये समझना होगा कि बोर इज नॉट बैड। दरअसल क्या होता है कि ये एंटरटेनिंग होते हैं, जो बिचौले होते हैं ना, ये एंटरटेनिंग होते हैं, ये काम कुछ करते नहीं है, एंटरटेनिंग होते हैं। मतलब हमें अगर क्या कहते हैं किसी के वर्ड सुनने हैं हम, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं कि यही कर रहे हैं सब कुछ। मतलब सारे काम जितने भी भारत में चल रहे हैं सभी सारे के सारे काम इनके द्वारा ही हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस क्या कोई सा भी हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, A to Z सब पॉलिटिशियंस बिचौलिएपन का काम करते हैं और वो करप्ट होते हैं। दैट्स इट। तो आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं आसाम में फ्लड आ रहा है और क्या कहते हैं बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही हैं।
अलग अलग लेवल पे. So health human trials for Covaxin begins Assam Sorrow and draft EIA environment impact assessment license for violations. तो CPIM के एक लीडर हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि आपने लाइसेंस फॉर वायलेशन दे दिया है. मतलब जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है उसके थ्रू आपने क्या करा कि एक तरीके से लोग बागों को लाइसेंस दे दिया है कि अपने आसपास के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका मिस यूटिलाइजेशन करो और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ. तो इसमें आत्मनिर्भर भारत में बेसिकली ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे देखने को आ रहे हैं. अब आगे आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, बिकॉज जो भी आज के टाइम पे सभी के सभी अपना अपना बिजनेस खोलने लग गए हैं. ठीक है, अपना अपना बिजनेस खोलने लग गए हैं. तो जो जंगल का एरिया है उसके वो क्राइटेरिया को मानते ही नहीं है. मतलब क्राइटेरिया जितने भी हैं वो बड़ी कंपनीज पे तो लीगल फाउंडेशन होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टाटा इंडस्ट्रीज हो गई और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं हल्दी की पैकेजिंग करते हैं और अलग अलग क्रॉप्स की पैकेजिंग करते हैं, पल्सेस की पैकेजिंग करते हैं. ठीक है, टाटा संपन्न आपने नाम सुना होगा. तो इन पे तो जो लॉज है वो फाउंडेशन रहती है उस चीज की. ठीक है, कि आप इतने पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिकॉज इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है कि इनकी रीच बहुत ज्यादा होती है. बट जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है तो इसमें क्या होगा कि सभी अपने अपने पैकेजिंग करना शुरू कर देंगे. एनवायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तो एनवायरमेंट लॉज को वो फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लीडर ने ये बोला है यू हैव गिवन द लाइसेंस फॉर वायलेशन. मतलब जितने भी एनवायरमेंट के इम्पैक्ट्स हैं उनके लिए आपने वायलेशन के लिए एक तरीके से लाइसेंस दे दिया है आत्मनिर्भर भारत के नाम पे. सो आगे हम अब रीड करते हैं. Weak earthen embankments cause Assam sorrow. Third, maintained or poorly constructed river embankments are added to Assam's flood goals this year. The daily flood summary provided by the Assam State Disaster Management (ASDMA) is a profusion of number. Some 5.35 million people of 5,004 villages and localities, 30 of Assam's 33 districts have been affected. 76 died. Okay. 5 on Friday in two waves of floods since May 22. Another 26 died in landslips. So far, 1,606 roads and 164 bridges and culverts have been damaged. What is major reason? Major reason क्या है इसका? The column also says 197 earthen embankments have been damaged or breached. इतने पुराने अगर embankments बने रहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही टिक पाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं या फिर वो क्या कहते हैं घिसने शुरू हो जाते हैं. तो इस वजह से हमें ये चीजें समझनी होंगी कि आपको बेसिकली प्रोजेक्ट में करना क्या है. ठीक है, breached. This is the major reason Assam suffers every monsoon. Water resources expert says one major feature of flood management in Assam is total dependence on embankments. If the approach to a very complicated problem is on a mono strategy that is technically unsound, then you are a great danger. That is what's happening. Okay. लास्ट मोमेंट स्कीम्स ASDMA. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब क्या कहते हैं आपके एक कहावत है ना, बाद बचता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो ये वही वाला काम करते हैं असम डेवलपमेंट फंड. तो ASDMA officials admit that the brittle embankments have often compounded the flood management plans. A factor is the last moment schemes submitted by the Water Resources Department. Embankments are repaired or constructed from the State Disaster Response Fund, but the schemes for release of money were submitted in May. When the flood season in Assam starts, the quality of work suffers obviously. तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है अगर आप तेजी से काम मई में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सिर्फ जून एंड देन जुलाई में पूरा असम फ्लड में आ गया। एक महीने में कौन-कौन से एम्बैंकमेंट बना देंगे, मेरे को ये समझ नहीं आता। एक महीने में तो एम्बैंकमेंट का कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, वो कच्चा सा रहेगा, उस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है ना कि वो एक पक्का हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन होगा, वो कच्चा सा रह जाएगा, फिर पानी आएगा, फिर वो उसे भाग ले जाएगा, फिर दोबारा से ये मनी की डिमांड कर देंगे कि जी असम के फ्लड में हमारा इतना नुकसान हो गया, ये जो एम्बैंकमेंट बनाए थे फ्लड में, ये एम्बैंकमेंट यहाँ से फिर से टूट गए, तो आप हमें फिर से पैसा दे दीजिए। ठीक है? तो जिस काम के लिए एक्चुअली में एक बार पैसे मिलने चाहिए थे, वो काम इन्होंने थोड़ा-सा टला के उसी काम के लिए 2 बार पैसे माँगेंगे, 2 बार। They will demand money 2 times for one single work. ठीक है? तो ये काम रहता है बेसिकली बिचौलियों का। मैं गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, उन्हें बिचौलिए के सिवा कुछ नहीं मानता। Water resources officials blamed the delay on COVID-19 and associated lockdown. Assam begins constructing embankments in the 1960s, and most of them have outlived their utility. Many of these started breaching or collapsing from the 1990s, more seriously from 2000s. Human trials for Covaxin began. Okay, Covaxin अगर हम देखें, ठीक है, वैसे वैक्सीन के बारे में हम पढ़ते आए हैं काफी लंबे टाइम से। 3 volunteers were administered Covaxin, India's first indigenous COVID-19 vaccine. इंडिया की सबसे पहली ये COVID-19 की वैक्सीन है। At the postgraduate Institute of Medical Science (PGIMS) in Rohtak on Friday, as part of first phase of human trials. ठीक है, first phase of human trials. The vaccine developed by Hyderabad-based Bharat Biotech in collaboration. देखो, बेसिकली वैक्सीन बना कौन रहा है? भारत बायोटेक ऑफ बेंगलोर, और टेस्ट किस पे किया जा रहा है? हरियाणा पे। तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली इम्यूनिटी के बेसिस पे ही ये काम किया जा रहा है, बिकॉज ये कंसिडर करा जाता है कि जो एक तरीके से प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस आर कंसिडर्ड टू बी द हायर। ठीक है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के काफी सारे रीजन, तो इन सब रीजन में क्या होता है कि ज्यादातर डाइट जो होती है वो वेजिटेरियन होती है, ज्यादातर लोगों की डाइट वेजिटेरियन होती है। ऑल्दो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो भी मतलब कुछ ही चीज कभी कभार ही खाते हैं नॉन वेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को खा लिया, सैटरडे को खा लिया, संडे को खा लिया, या फिर मतलब वीकली एक या 2 दिन। ठीक है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा झेलता नहीं है। ठीक है, जो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन कहते हैं अपने आप को, वो भी एक्चुअली में नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में नहीं गिने जाते, बिकॉज दे ईट मीट ओकेजनली, नॉट डेली। ठीक है, डेली मीट नहीं खाते, ओकेजनली खाते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो बेल्ट है वो बेसिकली क्या समझी जाती है? वेजिटेरियन बेल्ट समझा जाता है। ठीक है, एट यूनाइटेड नेशन मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड multilateralism, calling on members of the United Nations pledge for reform within the world body. Prime Minister Narendra Modi on Friday said multilateral system needed to be more representative, and India believed that the path to achieve sustainable peace and prosperity was through multilateralism. He was speaking at a high-level dialogue on the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) on multilateralism after COVID-19. What kind of United Nation do we need at the 75th anniversary? ठीक है, 75th एनिवर्सरी आ रही है, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC) ऑन मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, एंड 300 बिलियन पैकेज, वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए 300 बिलियन का पैकेज बात करी गई। और he also detailed economic measures to manage the impact of the pandemic. पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पे पड़ा है उसे मेजर करा जाएगा, और 300 बिलियन का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह
किया जाएगा, including a government package of 300 billion to bring economy back on track, build modern infrastructure and put in place a technology driven system. So ये आपका हो गया टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम. ड्राफ्ट EIA gives license for violation. The draft environment impact assessment EIA 2020 is in keeping with pro-business agenda of Narendra Modi government and gives a license for wrongdoing and violation. CPIM Polit Bureau member, Communist Party of India member, ठीक है, Polit Bureau member Brinda Karat said in a letter to the environment minister कौन है? प्रकाश जावड़ेकर. ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर. The draft EIA 2020 Miss Karat says in a contrary to its situation requirement to protect and improve the environment. Instead it is designed to dilute existing protections through different means. She further alleged that the draft not only suspends the EIA 2006 but also the circumvent various rulings made by the National Green Tribunal and Supreme Court. National Green Tribunal NGT के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रूलिंग दी गई थी 2006 में उसे वायलेट भी कर रहा है. ठीक है. The most objectionable aspect of the draft is completely ignoring the concerns of आदिवासीज. ठीक है, जो ड्राफ्ट है वो आदिवासीज के कंसर्न्स को रेज नहीं कर रहा है और who are going to be most affected community due to the dilution of environment regulations. आत्मनिर्भर भारत में बेसिकली एनवायरमेंट रेगुलेशंस को डाइल्यूट किया गया है, तो इसलिए ये इशू को रेज किया गया है. ठीक है. Value added information. Draft environment impact assessment EIA 2020. The key points of dispute with proposed draft are that it shortens the period of public consultation hearings to a maximum of 40 days. It reduces from 30 to 20 days the time provided for the public to submit their responses during a public hearing for any application seeking environmental clearance. ठीक है. It also allows the declaration of some areas of economically sensitive areas without a public hearing or environmental clearance. ठीक है. Public hearing मतलब गवर्नमेंट बनी है आपकी पब्लिक से और जो भी आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो उसमें आप पब्लिक की बात ही नहीं सुन रहे. ठीक है. तो ये वही वाला बात हो गया कि गवर्नमेंट एक बार बन गई तो वो एक तरीके से कम्युनिस्ट बिहेवियर लेके आ गई अपने आप में. ठीक है. तो उन्हें बेसिकली अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो जनता की राय, ठीक है, जनता की राय लेना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज अगर आप वहाँ के लोकल एरिया में रहने वाले लोगों की राय नहीं लेंगे तो आप तो अपनी मर्जी अपने व्यू पॉइंट से देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी. ठीक है. बट वहाँ के जो इश्यूज हैं, वहाँ पे जो बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनके ऊपर आपका फोकस जाएगा ही नहीं. It also allows the declaration of some areas as economically sensitive areas. Economically sensitive areas का मतलब क्या है कि जो एरियाज जहाँ पे क्या कहते हैं अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे. ठीक है. Without a public hearing or environmental clearance, several red and orange classified toxic industries could now operate as close as 0 to 5 kilometer from protected areas. और अगर कहते हैं जो टॉक्सिक इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं बेसिकली. ठीक है. तो टॉक्सिक इंडस्ट्रीज अब 0 to 5 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज अगर वो प्रोटेक्टेड एरियाज के पास में खुलेंगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनके जो अगर टॉक्सिक जो प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर उनके टॉक्सिक जाने लग जाएंगे तो बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे. तो careless disregard for forest. Protected areas in careless disregard for forest.
the increased validity of the environment clearance for mining projects 50 years versus 30 years currently, and river valley projects 15 years versus 10 years currently raises the risk of irreversible environmental, social, and health consequences on account of the project remaining unnoticed for long. Okay. So what is EIA? EIA, Environment Impact Assessment, is an important project for evaluating the likely environment impact of a proposed project. It is a process whereby people's views are taken into consideration for granting final approval. ठीक है, environment impact assessment में final approval की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Okay, मैं ये देखता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जब क्या कहते हैं कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई थी एक बार, तो बेसिकली वो क्या लेके आए थे, कैग का कंसेप्ट. ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का कंसेप्ट लेके आए थे. ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट, आप सभी देखते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उसी वजह से 2014 में गिर गई थी. ठीक है, बिकॉज कैग ने कौन कौन से घोटाले उनके सामने ले आए थे, बेसिकली कोयला घोटाला और क्या कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर कोई भी व्यू पॉइंट होता है ना, तो हमेशा उस व्यू पॉइंट को हमें सुनना चाहिए, बिकॉज दे वर्क फॉर द, मतलब उनकी पता नहीं कि, मैं ये देखता हूँ ज्यादातर जो बातें होती हैं वो एक्चुअली में नेशन के हित में ही होती हैं. ठीक है, बट उन्हें क्या दिखाया जाता है कि दे आर कम्युनिस्ट, बट दे आर नॉट कम्युनिस्ट. एक्चुअली किसी भी आइडियोलॉजी को हमें खराब नहीं समझना चाहिए, उस आइडियोलॉजी के हमें व्यू पॉइंट्स और उस आइडियोलॉजी के हमें क्या कहते हैं बेनिफिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीज को पढ़ना चाहिए. ठीक है, आप सभी ये मत सोचिए कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट. नो, डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि डेमोक्रेसी में अगर आप बेसिकली अभी डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, थोड़ा कम टाइम है. तो इसे रीड कर लेते हैं. The EIA process involves screening. The stage decides with projects need a full partial assessment study. Scoping the study decides which impacts are necessary to be assessed. This is done based on legal requirements and international conventions. Experts' knowledge and public engagement. This stage also finds out alternative solutions, assessment and evaluations of impacts, and development of alternatives. ठीक है, alternatives का development करना चाहिए कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो इस काम को ऐसे ना करके इस किसी और प्रोसेस के थ्रू भी आप कर सकते हैं. ठीक है, assessment and evaluation of impact and development of alternatives. This stage predicts and identifies the environmental impacts of the proposed project and also elaborates on the alternatives. EIA report in the reporting stage an environmental management plan (EMP) and also a non-technical summary of the project impact is prepared for the general public. This report also called environmental impact statement (EIS). Environment impact statement. Decision making. The decision on whether the project is to be given approval or not, and if it is to be given under what conditions. Okay, if it is to be given under what conditions. Okay, किस कंडीशन में हमें करना चाहिए. मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड एनवायरमेंट ऑडिटिंग. Monitoring whether the predicted impacts and mitigation happen as per EMP. ठीक है, as per EMP, environment management plan. Okay, UAE Mars probe mission launch rescheduled. Okay, Japanese rocket carrying the first Arab mission to Mars will blast into space on Monday after being delayed by bad weather. ठीक है, weather काफी खराब हो गया तो इस वजह से इसे डिले कर दिया गया है. The lift off of the United Arab Emirates Hope probe originally planned for Wednesday is now set for 6:50 a.m. on Monday from ये point याद रखना, from Tanegashima Space Center in southern Japan. ठीक है, southern
जापान। जापान का बेसिकली आपको मैप मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ, ठीक है। जापान आर मेड अप ऑफ 4 आइलैंड्स, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू एंड क्यूशु। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू एंड क्यूशु, ठीक है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जापान का, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू एंड क्यूशु, ठीक है। तो ये हो गया आपका जापान के आइलैंड्स। इन चारों आइलैंड्स को मिला के जापान बनता है, ठीक है। The lift of Japan Mitsubishi Heavy Industries said, ठीक है। So इस क्लास को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। 1 मिनट बची है आपकी, ठीक है। तो अगली क्लास में अभी इक्वल राइट्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल राइट्स, ओके, ये करते हैं। और अभी आप 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं, 5 मिनट बाद आप ज्वाइन कर